सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस को लाके इंटरसेक्ट करें तो वो 90 डिग्री के एंगल बनाता है. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में यू कैन सी दैट एट पॉइंट पी, ओ से जो रेडियस आया है ओ टू पी, ये रेडियस है, और ये जो लाइन है पी बी, ये टेंजेंट है. दिस इज टेंजेंट. सो एट पॉइंट बी दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल. ठीक है, ये बॉक्स नजर आ रहा होगा 90 डिग्री का. सो आफ्टर दैट देयर विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी बी. मिस ओके, सर, टेंजेंट ये है जो 90 डिग्री एंगल बना रही है लाइन टेंजेंट इज द लाइन पी बी. पी पी बी बी। नजर आ रहा अच्छा, है. और परपेंडिकुलर वाली ओपी है। ओपी, ये रेडियस जो आ रहा है जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को, उसी पॉइंट पे रेडियस आके टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जो हमने ओके। पॉइंट पी का नाम दिया है. तो ये 90 डिग्री के एंगल बन रही है, ये रेडियस है. तो रेडियस हमेशा टेंजेंट को जब इंटरसेक्ट करता है तो 90 डिग्री की एंगल बनाता है, जैसे ये आपको नजर आ रही होगी. ये 90 डिग्री ओके की एंगल नजर आ रही है. जी जी। बॉक्स नजर आ रहा है पी पे, पॉइंट पी पे बॉक्स है. अच्छा, बहरहाल क्वेश्चन पर आते हैं. This is question number 1 of exercise 13B. It was done on 25th of November 2020 in school. So the values written with the black marker is the question. The question in the question, do you all have your books with you? नो सर। So you have to keep your books, your maths eraser and the calculator with you whenever you are taking maths online class. ओके Okay, so if you see the question 1 of exercise 13B, in this question, this circle is given. Okay, and this triangle, the tangent PB is given. All the things which are drawn with the black marker are given. AP, AOB is given, PO is given, and PB is given. And the value 33 degree is also given. 33 degree is the angle APO. That is 33 degree. Okay, and in question they are asking you to find the value of PBA. PBA, angle PBA. You have to find angle PBA. Now to find angle PBA, what values we have to find first? Now, first of all, we are calculating angle PAO. And you can see that angle PAO is also of 33 degree. Why this is 33 degree? जो blue से लिखा है मैंने, ये values हमने खुद calculate करके लिखी हैं. तो सबसे पहली value 33 degree, PAO. Why angle PAO is of 33 degree? Who will tell me? वापस रिपीट करिएगा सर। Why angle PAO is of 33 degree? ए Don't know? नो सर। Okay, actually, if you observe that AOP is a triangle which has two equal sides. So it means that it is an isosceles triangle. How it is an isosceles triangle? OP and OA are the equal sides because OP and OA are the radius of this circle. So OP and OA are equal side of this triangle APO. So it means that if the angle P is 33 degree, so angle A will also be 33 degree because isosceles triangle की दो sides equal होती हैं, उसकी दो angles भी equal होती हैं. Now if angle PAO and APO are 33 degrees, so what will be the value of this third angle AOP? So what we will do, look at the solution. Solution में मैंने लिखा भी है OAP is equal to OPA is equal to 33 degree because of isosceles triangle. Then in second step AOP. AOP के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे 33 plus 33 that will be 66. Then we will subtract 66 from 180. We will get this third angle AOP that is 114. So AOP is equal to क्वेश्चन है उसमें 180. मैं बताया भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, ये हमें खुद देखना है ना. देखो रेडियस है, ये ओपी और ओए क्या है? रेडियस है. जब ये रेडियस है तो ये जो ट्राइंगल एपीओ बन रही है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी. इक्वल होगा। सी,
तो ये बताया हुआ नहीं है हमें, ये हमें खुद से रेडियस और ये सारी वैल्यूज से खुद से सही है। पहचानना है। ठीक है तो ये तो सारे ही रेडियस है। सारे रेडियस नहीं है, ओपी और ओए रेडियस है, और बाकी फिर मैं बताता हूँ आगे तुम्हें। ठीक। अच्छा, अब 114 किस तरह आया? व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट सम ऑफ 33 एंड 33 फ्रॉम 180 वी विल गेट 114। ये सॉल्यूशन में आप देख भी रहे हैं सेकंड स्टेप में। You can see that AOP is equal to 114 degree. Then we will calculate POB. ठीक है, POB, you can see that AOB is a straight line and there are two angles on a straight line divided by the radius OP. OP से दो राइट जो एंगल्स को डिवाइड किया हुआ है स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स होती हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक एंगल 114 डिग्री की है तो इसके बराबर में जो एंगल है वो 66 डिग्री की होगी, और इसके लिए हमने कैलकुलेशन शो की है, POB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब ये हमने सब काम इसलिए किया था सो दैट वी कैन इजीली फाइंड एंगल PBO या PBA। PBO कहें या PBA कहें, आप बात एक ही है, एंगल बी ही आपको कैलकुलेट करनी है दोनों में, और वैल्यू सेम ही होगी, जाहिर है एक ही वैल्यू आएगी एंगल बी की। सो एंगल PBO के लिए आप यू हैव टू सी द ट्राइंगल POB। In the triangle POB, we have drawn the box of right angle triangle there, okay, because ये tangent और radius आपस में intersect हो रहे हैं इस point पे, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रही है। So इस तरह ये बन गई right angle triangle POB, and in this right angle triangle we have we know the two angles, 90 degree angle that is a box drawn, and 66 degree which we have just calculated. So we will add 90 plus 66 and we will subtract them from 180, we will get the angle PBO और angle B। तो यहाँ पे आप देखिए कि एंगल PBO या PBA दोनों का आंसर सेम ही होगा। सो PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 66 प्लस 90 डिग्री is equal to 24 degree. This is the answer of angle PBA, or you can say angle B is 24 degree. ठीक है, तो ये क्वेश्चन वन का पार्ट ए एक्सप्लेन किया मैंने, बल्कि क्वेश्चन वन एक्सप्लेन किया मैंने, वन का पार्ट ए नहीं, क्वेश्चन नंबर वन। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन नंबर वन? माइक पे अप्लाई कर दें जल्दी से, आगे बढ़ेंगे फिर हम। यस सर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। ये जितने भी क्वेश्चन है सब टेंजेंट से रिलेटेड है एक्सरसाइज 13B के। ठीक है, so there is another tangent TA, you can see this, and another isosceles triangle OAB, OA और OB are radius, तो इसलिए जो ये ट्राइंगल बन रही है OAB is an isosceles triangle। और जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट और रेडियस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट ए, यहाँ पे यू कैन सी दैट एक राइट एंगल भी बन रही है। So in this question, only one angle is given, that is 64 degree angle AOT, 64 degree given है, and in the first part you have to find angle ATB, okay. So to find angle ATB, it is very easy. We will add 64 and 90 and we will subtract them from 180. We will get angle ATB, that is 26 degree. ये तो बहुत आसान था part one. Now come to the part two. In part two, you have to find angle TAB. So to find angle TAB, first we have to find angle OAB. Okay, जब OAB आ जाएगी तो उसको 90 में ऐड कर देंगे तो TAB आ जाएगा। So to find OAB, first we have to find angle AOB. AOB इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 64 के बराबर वाली एंगल इजीली आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन पे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो 64 को माइनस करेंगे 180 में से, तो इसके बराबर में जो ब्लू से मैंने लिखा है 116, ये एंगल आ जाएगी, यू कैन सी दैट। सो 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116। जब 116 आ जाएगा तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है AOB।
So we will subtract 180 from 116 from 180. We will get 64. 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल ए 32, एंगल बी 32. So we will get two angles of 32 degree, angle OAB and angle OBA. ठीक. Now अब हमारे पास एंगल AOB आ गई है. Now we can find the value of angle TAB. So to find the value of angle TAB, we will add 90 degree plus 32 degree. So 90 plus 32 is equal to 122 degree. So you can see in the solution of part 2, the answer of angle TAB is equal to 90 plus 32 is equal to 122 degree. सबको समझ में आएगी क्वेश्चन 2? आगे चले. यस सर. ठीक है, अभी कॉपी करने का टाइम मैं दूंगा आप लोगों को. अभी समझ लें जल्दी जल्दी इसको, फिर कॉपी करते हैं. Now come to the question number 3. Question number 3 is also a tangent. There is also a tangent AB. AB की जो लाइन है स्ट्रेट, ये टेंजेंट की लाइन है. ठीक है. And there is another isosceles triangle OBC. OBC is an isosceles triangle because OB and OC are equal because they both are radii. दोनों ही रेडियस है ये, इसलिए. ठीक है. अब इन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल को बीच में ये कॉर्ड भी है, BC इज अ कॉर्ड एज वेल. तो इस कॉर्ड को OD वाली लाइन ने जब बाइसेक्ट किया है तो 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है. तो यहाँ पे देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, टू congruent right angle triangles, ODB and ODC. These two are congruent right angle triangles. Means their corresponding angles are equal and their corresponding length of corresponding sides are equal. Okay. And what is given in the question? In the question, they have given you this x, only the value of x, angle A, that is x. Okay. And what you have to find in this question, you have to find the value of angle COD in terms of x. You have to find the value of COD in terms of x. Why in terms of x? Because in this question, no numeric value is given. Only variables are given and only angle A is given, that is x. अब उस एंगल A जो x है उसकी मदद से आपको फाइंड करनी है एंगल COD, that is 40. अब कैसे फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x देखिएगा. So first look at this triangle ABO. ABO is a right angle triangle because the OB is the radius and AB is the tangent, and point B पे radius और tangent intersect कर रहे हैं, so obviously they will make a 90 degree angle, they will intersect perpendicularly. So angle B is here 90 degree, angle A is here x. We will add them and we will subtract them from 180. We will get angle AOB, that is 90 minus x. अब ये 90 minus x कैसे आया है ये देखिए जरा. एंगल AOB is equal to 180 minus 90 plus x. और जब 90 plus x को माइनस किया 180 में से, so we got 90 minus x, that is angle AOB. ठीक है. अब एंगल AOB आने के बाद देन वी कैन फाइंड एंगल BOC जो कि इसके बराबर में है, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन है. इस स्ट्रेट लाइन पे ये 90 माइनस एक्स इस साइड पे एंगल आ रही है AOB, तो वी हैव टू फाइंड एंगल BOC. ये पूरी एंगल BOC फाइंड करनी है हमें. तो वी विल सब्ट्रैक्ट 90 माइनस एक्स फ्रॉम 180, वी विल गेट एंगल BOC. Okay. So now look at this. Angle BOC is equal to 180 minus 90 minus x because of supplementary angles. So 180 minus 90 minus x is equal to 90 plus x. That is angle BOC. 90 plus x. Angle BOC is equal to 90 plus x. Now we have to find in the question they ask us to find the angle COD in terms of x.
So angle COD is the half part of angle BOC. So when we will do half of angle BOC, we will get angle COD. Okay. So the angle COD is equal to 90 plus x divided by 2. So 90 plus x divided by 2 means 90 divided by 2 and x divided by 2 separately. So 90 divided by 2 is equal to 45 degree plus x divided by 2 is equal to x upon 2. So the answer of angle COD is equal to 45 plus x upon 2. So it was the question number 3. समझ में आया सबको ये? Safi? Yes, जी sir. सर. Okay. Now come to the question number 4 part A. In question number 4 part A, there are two tangents. अब दो टेंजेंट वाली जो प्रॉपर्टी थी उससे मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि ए पी इज अ टेंजेंट एंड बी पी इज अ टेंजेंट. ठीक है, ये दो टेंजेंट थे और इन दोनों टेंजेंट को ओ ए रेडियस है, ओ बी इज ऑल्सो द रेडियस. अब रेडियस जब इंटरसेक्ट करता है तो 90 डिग्री की एंगल बनाता है एंड ओ पी इज द लाइन विच इज डिवाइडिंग which is making two right angle triangles, two congruent right angle triangles. ठीक है, तो OP वाली लाइन से दो right angle triangle बन रही हैं, एक OAP and the another is OBP. Okay, so it means that all the corresponding sides and all the corresponding angles will be equal of these two right angle triangles. So in question number 4 you have to find the values of the unknown variables in the part ABC. A, B, C, D, F, whatever the parts are given. So first of all, the value of A. What will be the value of A in this figure? Can anyone tell me the value of A? Ismail, Safi, Muawiyah, yeah, It's 49. 49. The value of A is 49 degree. Okay, good. And what will be the value of B? Uh, Yes. Value of B will be 14 because side AP and side BP are equal. So AP is 14, it means that BP will also be 14. So the value of B is 14. ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो आपको देख के ही आंसर पता चल जाना चाहिए. जैसे So सर मुझे these लगा are, एंगल भी. अच्छा चलो. Now come to the part B of question number 4. In this part, you have to find the value of the unknown variable C and D. C की वैल्यू पहले है, ये D की वैल्यू आई है. What will be the value of D? 15. 15. And what will be the value of C? C की वैल्यू के लिए हमने 32 ऊपर दिया था रेड से, नीचे वाला ब्लू से 32 हमने खुद लिखा है क्योंकि ये सेम एंगल्स होंगी. और एंगल सी फाइंड करने के लिए वी विल ऐड 32 एंड 90, वी विल सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम 180, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी एंड द सी इज सेम इक्वल टू क्यों होंगी 58. 32. क्योंकि दो सेम राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल बनती है ना, ये दो जब टेंजेंट होते हैं तो इनको जब हम ओपी वाली लाइन से जब सेपरेट करते हैं, ओपी वाली लाइन जब ड्रॉ करते हैं हम, तो दो सेम राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं. एक है यहाँ पे ओ ए पी, नजर आ रहा है जी सर. राइट एंगल ट्राइंगल. दूसरा है ओ बी पी. बी पर भी 90 डिग्री की एंगल बनेगी, वो क्वेश्चन में नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की, जरूरत नहीं पड़ी थी उसकी. पता है आप लोगों को ये ओ बी पी इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल. और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सेम होती हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होती हैं. ठीक है, तो इसलिए साइड ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, साइड ए पी विल बी इक्वल टू साइड बी पी एंड साइड ओ पी इज द कॉमन साइड बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स. सेम एज एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी 90 degree
and angle OPA will be equal to OPB, and angle AOP will be equal to BOP. ठीक, समझ में आया अब ये? Yes, sir. तो C की वैल्यू आ गई 58 डिग्री. नाउ कम टू द पार्ट C. पार्ट C में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड F. ठीक है, जो रेड से लिखा है वो आपको गिवन दिया है क्वेश्चन में. साइड OB 10 दिए जो कि रेडियस है, और एंगल BOA इज 112 डिग्री. ये पूरी एंगल दी है BOA, तो हाफ हम खुद कर सकते हैं इसको. तो BOA पूरी एंगल दी है, इसको हम अगर हाफ करें तो 56 एंगल बनेंगी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए. AOP इज 56 एंड BOP इज आल्सो 56, हाफ ऑफ 112. ठीक. So first we are calculating angle E. So to calculate angle E, we will add 56 and 90. We will subtract them from 180. We will get angle E. ये calculation आपके सामने हुई हुई है angle E की. That is equal to 34 degree. So angle E is 34 degree. Then you have to calculate side B. Side B, for side B, we applied trigonometrical ratios, the formula of tangent. Now look at this. This is a right angle triangle BOP. You can see that. So in right angle triangle BOP, the angle BOP 56 degree is given, side OB 10 meter is given, and we have to find side BP. So BP side is opposite to the angle and OB is adjacent. So opposite upon adjacent, we will apply the formula of tan. So tan 56 is equal to F upon 10, and we will further solve it. We will get the value of F, that is 14.8 meter. समझ में आया सबको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो अप्लाई किया हमने यहाँ पे? पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. तो अभी इसको कॉपी कर लो जल्दी से. So, yes. सफ़ी किसी रफ वर्क में किसी दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर लें. जी सर, रजिस्टर में लिख रहा हूँ मैं. फिगर यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ द फिगर्स, सिर्फ कैलकुलेशन लिख लीजिए आप. फिगर तो क्वेश्चन में है, ड्रॉ हुई है. समझ में आ गया? या अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए, या बुक में ही इसको सॉल्व करके और कैलकुलेशन रजिस्टर में लिखनी है. सॉल्यूशन बुक में कर दीजिए पेंसिल से, जो क्वेश्चंस में फिगर्स ड्रॉ हुई है वहां पे. ठीक है.
सर मेरा हो गया तो मैं जाऊं? जाना नहीं है अभी, और आगे भी है। सर तो 7 मिनट रह गए। 7 मिनट नहीं रहे अभी, 11:15 पे एंड होगी, अभी तो 23 मिनट्स है। सफी हो गया, आगे बढ़े। जी सर काफी है आज के लिए, इतना बहुत समझ आ गई। नहीं बेटा, कम है अभी, आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो वैसे भी 10 सर दिमाग में ऐसे डे से घुसाया आपने, ऐसे सरिया घुसा दिया, इतना दर्द हो रहा है वो ये सुन के। है। कोई बात नहीं हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी आगे देखिए, ये आपकी गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है काम, लेकिन आप लोगों को फुर्सत ही नहीं है कि आप लोग देखें गूगल क्लासरूम पे सर ने क्या है अपलोड किया है क्या नहीं किया। ये वहां से भी देख के कर सकते थे आप। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी ई एफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप लोग कॉपी कीजिएगा वहां से गूगल क्लासरूम से। ठीक है, ये सब वहां पे अपलोडेड है। गूगल क्लासरूम तो है ना, सबकी आईडी तो ऑन हुई भी है ना गूगल क्लासरूम पे। जी सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। इन पार्ट डी सर ये दो स्माइल, टेंजेंट्स हैं। ये जी, गेम किया इस्माइल। है? नहीं किया अच्छा, इन्होंने। स्कूल खुलेंगे चेक होंगे ना रजिस्टर, पता चलेगा फिर। अब वैसे भी, बल्कि स्कूल नहीं है, आपको इसके काम की पिक सेंड करनी है, मुझे हैंड इन करनी है। ये काम कंप्लीट करके सबको इसकी पिक गूगल क्लासरूम पे हैंडेड इन करनी है, मुझे सेंड करनी है। वहां से चेक करके मैं फिर आपको मार्क्स दूंगा। डेली बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, मैं बता दूं आपको कि आपकी अटेंडेंस और आपके असाइनमेंट पर मार्क्स रखे गए हैं। और ये डेली बेसिस पर जो है वो टीचर्स मार्क्स जो है वो एंट्री करते हैं। सर तो अ, फिर मिड टर्म नहीं होंगे? अभी कुछ नहीं पता मिड टर्म का, ऑब्वियसली जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो मिड टर्म तो इस तरह से नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो आपके अपेयरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। मे बी पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात और अच्छा अच्छा। लेट्स सी, वो जो जब होगा तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन अभी यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द असाइनमेंट एंड ऑनलाइन क्लासेस। तो जो भी आपको असाइनमेंट और ऑनलाइन क्लासेस में काम दिया जा रहा है गूगल क्लासरूम पे, वो आपको लाजमी करना है। यू हैव टू हैंड इट इन एज वेल। ठीक है, तो इसकी पिक लेके मुझे हैंड इन कर देना, मैं चेक करके आप लोगों को मार्क्स दूंगा सबको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। In this question you have to find the value of g and h। ये अननोन वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो ये देखिएगा, रेड से जो भी ड्रॉ हुआ हुआ ये क्वेश्चन में है ऑलरेडी, और ब्लू से जो है ये सब हमने खुद किया है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लू से एंगल बनाई है ओ बी, बी पर एंगल राइट एंगल का बॉक्स बनाया है बिकॉज रेडियस और टेंजेंट है। इसी तरह से ए पर भी हमने बॉक्स बनाया ब्लू से, ये भी रेडियस और टेंजेंट है। एंड एंगल 35 ब्लू से हमने लिखी है बिकॉज इट विल बी इक्वल टू एंगल बी पी ओ, जो कि 35 है रेड से, तो उसके नीचे भी 35 होगी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे एक कॉर्ड है, देयर इज अ कॉर्ड ए बी, ठीक है, ए बी वाली लाइन नजर आ रही है सबको, ये कॉर्ड है। और कॉर्ड का मैंने बताया था आपको कि सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर कोई लाइन कॉर्ड को इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली तो वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कॉर्ड को जब इंटरसेक्ट किया ओ से जो लाइन आ रही है जो पी तक जा रही है इसने, तो आप देखिए चार मैंने राइट एंगल बॉक्स बनाए उस पॉइंट पर जहां पे कॉर्ड को ओपी वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एंगल जी। अब एंगल जी कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, एंगल ए बी पी, ए बी पी कैलकुलेट किए पहले, ए बी पी। और ए बी पी कैलकुलेट करने के लिए हमने 180 में से 90 डिग्री और 35 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो 90 का बॉक्स नीचे बनाया जहां पे कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखिए, ये 90 डिग्री और 35 डिग्री को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो ऊपर यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल आ जाएगी अंदर वाली, ठीक है। फिर 90 में से इस अंदर वाली एंगल जो हमारे पास आ रही है दैट इज एंगल ए पी बी। तो एंगल ए पी बी को फिर 90 डिग्री से माइनस करेंगे, ये देखिए हमने किया है, एंगल जी इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो एंगल जी आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री, ओके। देन वी हैव टू कैलकुलेट एंगल जी, एंगल एच। एंगल एच सर समझ कैलकुलेट में आया करने के ही लिए नहीं। देखो इसमें आपको देखना होगा ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल ये नजर आ रही है, बी पी, और ये पॉइंट जहां पे चार राइट एंगल बॉक्सेस बने हैं, ये पॉइंट नजर आ रहा है, जी सर। ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें 35 डिग्री की एंगल और ये जो 90 डिग्री की एंगल है जो नीचे बॉक्स बना है इसके अंदर 35 के सामने नीचे, इनको प्लस कर लेंगे और 180 में से माइनस करेंगे तो ऊपर जो एंगल बी का जो पोर्शन है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये आपके पास आ जाएगा अंदर का पार्ट जो कि 55 सही है डिग्री सर। आ रहा है, ठीक है। फिर ये पूरा 90 डिग्री है एंगल बी, तो 90 में से 55 को लेस करेंगे तो एंगल जी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब आ जाए एंगल एच पर। एंगल एच के लिए आप फिर से इसी एंगल को देख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल ये जो बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है दिस, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 35 90 को प्लस कर लेंगे, ये एंगल एच तो सामने जो एंगल आएगी 55 डिग्री उसके इक्वल ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो भी हमने 90 प्लस 35 को प्लस करके 180 में माइनस के 55 है तो एच की वैल्यू भी 55 डिग्री ही आएगी। तो यहाँ पे कैलकुलेट भी हुआ हुआ ये देख लीजिए आप, एंगल जी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल एच इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक। अब आ जाइए पार्ट ई पर। पार्ट ई में थोड़ा सा आपको और कंफ्यूज किया है इन्होंने, यहाँ पे साइड आई जो है, आई की लेंथ ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ की है बस यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये जो डॉट है ब्लैक इससे लेकर और पॉइंट पी तक की लेंथ है आई, ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ भी की है इसके ऊपर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आई, लेंथ ऑफ आई। और ये दिस इज एंगल जे, ये नजर आ रहा होगा आपको, दिस इज एंगल जे एंड देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, दो टेंजेंट, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है बी ओ पी। अब बी ओ पी में बी ओ रेडियस है 5, बी पी टेंजेंट है 12, तो इन दोनों से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वी विल गेट द लेंथ ऑफ ओपी, और लेंथ ऑफ ओपी में से हम रेडियस जो है ये ओबी, देखें ओबी इज रेडियस एंड ओ ए इज रेडियस एंड दिस ओ टिल पॉइंट, ये जो ब्लू और ब्लैक पॉइंट लग रहा है, ब्लैक पॉइंट जो मैंने लगाया है ओ से लेके ये ब्लैक पॉइंट, दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो अब रेडियस की लेंथ यहाँ पे 5 दी है, इट मीन्स दैट ये भी 5 होगा
और O till A will also be 5, ठीक है, बिकॉज ये सर तीनों तो फिर लेंथ मुझे रेडियस ऐड है। कर देंगे या 5 माइनस करेंगे आई की? हाँ, अब पाइथागोरस थ्योरम आप जब अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड है ये साइड OP, ठीक। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे, वी विल गेट द लेंथ ऑफ OP। उसमें से फिर हम माइनस करेंगे 5 को, तो हमारे पास आई की लेंथ आएगी, समझ गए। OP की लेंथ में से माइनस करेंगे 5 को, तो आई की लेंथ आएगी। ये सॉल्यूशन भी देख लो, ये होगा OP स्क्वायर इज इक्वल 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व किया, वी विल गेट द लेंथ ऑफ OP 13 सेंटीमीटर। देन I इज इक्वल टू 13 माइनस 5, I इज इक्वल टू 8, ठीक है, I की वैल्यू आ गई। फिर I के बाद J, एंगल J के लिए वी विल अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, द फॉर्मूला ऑफ tan विल बी अप्लाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि J के अपोजिट 12 है, एडजेसेंट 5 है, तो tan एंगल J इज इक्वल 12/5, सो द वैल्यू ऑफ एंगल J इज 67.4। ये हमारा पार्ट E भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। देन पार्ट F, अब पार्ट F और E तकरीबन एक ही जैसे, अगर आप चाहें तो खुद सॉल्व करके समझ लें इसको, या मैं ही एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन 5 पे चलें या ये एक्सप्लेन करूं, या खुद समझ लेंगे। यस सफी। तो जैसा सफी, आपको ठीक लगे। अच्छा, तुम तो नींद में ही हो रहे हो भाई, जाग जाओ। पार्ट F, in part F you have to find the value of L, एंगल L, ठीक है, एंड K। ये दो अननोन वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में, K एंड L, और K इज रेडियस, OB इज इक्वल टू K। तो रेडियस की वैल्यू K है, इसका मतलब है कि OA की लेंथ भी K होगी, और अगर आपको टोटल OP की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो OP की लेंथ भी 7 प्लस K होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये तो हो जाएगा रेडियस, ये O से लेके इस पॉइंट तक जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रेडियस है, तो ये भी K होगा, K, और ये लेंथ इन्होंने दी है 7, सो K प्लस 7 हो गई लेंथ ऑफ OP। लेंथ ऑफ BP इज 15 एंड लेंथ ऑफ OB इज K, ठीक। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, OP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो OP की लेंथ K प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 12.6। तो K की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे, फिर L के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल गेट द एंगल L 15 अपॉन 12.6, then L is equal to 50 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट F। क्वेश्चन 4 खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में टेंजेंट PAT है, और इसके अलावा सर्कल में दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है OAB, ठीक है, OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखें एंगल भी 46 है, तो एंगल A पर भी मैंने ब्लू से 46 लिखा हुआ है ऊपर करके, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक। और OA वाली लाइन टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो 90 डिग्री की एंगल भी बनी है, यहाँ पे बॉक्स नजर आ रहा होगा आपको, O पॉइंट A पर एक बॉक्स भी बना हुआ है जो रेडियस से लेके टेंजेंट तक है। अच्छा, अब ऊपर की एंगल 46 हो गई बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसके नीचे जो एंगल है वो 44 होगी, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है OAT की। तो OAT द टोटल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो इसमें OAB 46 और BAT 44 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। और इसके अलावा इसमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट BAT कैलकुलेट करना है, BAT। तो BAT हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि 44 डिग्री आया है, 90 माइनस 46 इज इक्वल टू 44 डिग्री। फिर पार्ट 2 में वी हैव टू कैलकुलेट PTC, ठीक है, PTC यानी एंगल T कैलकुलेट करनी है, ये दिस एंगल T।
अब एंगल टी कैलकुलेट करने के लिए हम जो कंसीडर करेंगे वो करेंगे ट्राइंगल सी ए टी। ये ट्राइंगल सी ए टी नजर आ रही है सबको? सी ए टी, ये बड़ी ट्राइंगल है सी ए टी। सी टी की लेंथ आ गई इसमें, ए टी है एंड सी ए है इसमें, तो ये पूरी एक बड़ी ट्राइंगल है। ठीक, इस ट्राइंगल में एंगल सी 44 डिग्री दी है और एंगल सी ए टी, ये पूरी एंगल फाइंड करनी है हमें। तो 90 डिग्री का पार्ट तो हमें पता है, लेकिन इसके बराबर में जो हिस्सा है वो नहीं पता। लेकिन ये पी ए टी स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे पी ए की तरफ 69 डिग्री की एंगल है एंड ओ ए बी 90 डिग्री की एंगल है। बीच की एंगल हम मालूम कर लेंगे 180 में से 69 और 90 को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो वो एंगल आ जाएगी, फिर उस एंगल को हम 90 में प्लस करेंगे तो ये होगी 111 सी ए टी। सी ए टी की एंगल आई है यहाँ पे, लिखा है हमने सी ए टी 111। ओके, then angle PTC, to find angle PTC we will add 44 angle C and we will add angle CAT, that is 111, और ऐड करने के बाद इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से। सो PTC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 प्लस 111 इज इक्वल टू 25 डिग्री। सो पीटीसी का आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया जी। अब कितने स्टूडेंट्स को समझ में आएगी? मुआविया, सफ़ी, इस्माइल, जी सर, आ गया समझ। याया? ठीक है, कॉपी कर लें इसको जल्दी से। अभी हमारे पास है 5 6 7 मिनट्स है। अच्छा, बगैर बताए कोई लीव नहीं करेगा, पहले मैं अटेंडेंस लूंगा फिर उसके बाद ही आप लोग लीव कीजिएगा। गूगल क्लासरूम रोज़ाना चेक कीजिए, शाम को 7 8 बजे तक चेक किया कीजिए, 7 बजे तक, ताकि जो भी काम है उस पर वो दिन में टीचर्स अपलोड कर देते हैं, तो शाम को 7 बजे तक काम आ जाता है सारा, तो आप वहाँ से देख के उसको कंप्लीट करें। और मैथ्स की जो भी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं वो सारी आपको गूगल क्लासरूम से देख के कंप्लीट करनी है। आई हैव अपलोडेड क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन एज वेल एंड क्वेश्चन वर्कशीट ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल मैंने अपलोड की है, वो भी आप लोगों को रजिस्टर में ही कंप्लीट करनी है। and I have सर uploaded. Yes. सर ये जो अपना ये आपने जो काम डाला है ये गूगल क्लासरूम पे ये भी डाला है, ये एक्सरसाइज नंबर जो बी वगैरह है? सब गूगल क्लासरूम पे क्लास 10F का फोल्डर है मैथ्स का, उस मैथ्स के फोल्डर में ये सारा काम है। ओके सर। अच्छा सर, ये अभी आप अटेंडेंस लेंगे? ऐसे हम लोग लिख के दें अटेंडेंस का चैट में? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, ये कॉपी कर या लिया तुमने? जी सच बोल रहे हो? जी, मैं स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट लिया आपने? ये सब करना है, काम रजिस्टर में मुझे कंप्लीट चाहिए और ये पिक लेके मुझे हैंड इन करना है आप लोगों को। ओके सर। मुआविया, किया आपने? सर कड़ी का जी वापस सर, बड़ी मैं आपको स्क्रीन तो भेज करे, दूंगा। कर लिए। ठीक है, बड़ी स्क्रीन करेगा सर? 1 मिनट रुको। पिछला पिछला भी दिखा दीजिएगा सर। ये गूगल क्लासरूम पे है। सॉल्यूशन सर आपके पास है ना, पिछला भी दिखा दे। अच्छा, 1 मिनट रुको, ये मैंने आपका ही फोल्डर खोला हुआ है 10J का, नहीं 10F सर, का। थैंक यू सर, कर लिया। अभी रुक जाओ, जाना नहीं है अभी।
मुआविया नवीद, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद खान लोधी। मोहम्मद खान लोधी का पूरा नाम क्या है? सर उमर लोधी।